Hello viewer, welcome to this channel. Today we will going to start a series on basics of civil engineering, under which we will going to learn various construction materials such as stone, sand, lime, cement, bricks, timber, steel and much more things. And references of my videos are the book from Pearson Publication and several books. So let's get started with stone. Stones. Stones form one of the most important building materials in civil engineering. Stones are derived from rocks which form the earth's crust and have no definite shape or chemical combination but are mixtures of two or more minerals. The mineral is a substance which is formed by the natural inorganic process and possesses a definite chemical combination and molecular structure. They are strong, durable and decent in appearance. The main usage of stones as a building material are as a principal material for foundation of civil engineering works and for the construction of walls, arches, abutments and dams. In stone masonry, in places where it is naturally available, as coarse aggregate in cement, concrete, crust form of rock, as a roofing material in the form of slates, as a flag or thin slab for paving, as a soling material in the construction of highways and runways, as a ballast for railway track, as a veneer for decorative front and interior buildings, limestone for construction of important buildings like temples, churches and mosques, and limestone for the manufacture of cement and as a flux in blast furnace. Numerous examples of magnificent building made partly wholly of stones can be given from different parts of the world. The Taj Mahal, Red Fort, and temples of Jagannath, Puri, and Mahabalipuram are best known buildings of our country made up entirely of stones. Sources of stone. Sources of stones. Stones are obtained from rocks. A rock represents a definite portion of the earth's surface. They occur almost everywhere in mountainous and hilly areas. It has no definite chemical composition and shape. Stones are available in large quantities in different parts of our country. It is necessary to know the availability of good stones in and around the construction site to make maximum use of this naturally available and cheap building material. ओके स्टोन्स रॉक से बनते हैं. रॉक एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में अर्थ सरफेस पे मौजूद है. ये ज़्यादातर सभी जगह सभी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं. इसका कोई डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन और शेप नहीं होता है. स्टोन्स लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मौजूद हैं. ये ज़रूरी है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि अवेलेबिलिटी अच्छे स्टोन्स अच्छे पत्थरों की अवेलेबिलिटी हमारे साइट पर कितना है और कैसा है, ताकि हम इसको चीपली यूज कर सकें. ओके, इट इज़ नोन एज मोनो मिनरल्स रॉक इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन मिनरल. यदि ये एक मिनरल कंटेन करता है तो इसे मोनो मिनरल रॉक कहते हैं. एंड इट इज़ नोन एज पॉली मिनरलिक रॉक इफ़ इट कंटेन्स सेवरल मिनरल्स. और अगर एक से ज़्यादा मिनरल्स कंटेन करता है तो इसे कहते हैं पॉली मिनरलिक रॉक. क्वार्ट्ज सैंड chemically pure gypsum, magnesite etc. are examples of
monomineralic rocks, and basalt, granite are the examples of polymineralic rock. क्वार्ट्ज़ेंट और प्योर जिप्सम और मैग्नेसाइट ये सब मोनोमिनरलिक रॉक्स हैं, और बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब पॉलीमिनरलिक रॉक्स हैं. मिनरल्स are the units of which the rocks are made up of. A mineral indicates a substance having definite chemical composition and molecular structure. It is formed by natural inorganic process. The properties of a rock are governed by the properties of minerals present in the structure. The common rock forming minerals are quartz, feldspars, calcite and mica, hornblende, etc. रॉक की जो प्रॉपर्टी है वो मिनरल के प्रॉपर्टी से गवर्न होती है. जैसा मिनरल होगा वैसा रॉक होगा. कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो होते हैं वो क्वार्ट्ज होते हैं, फेल्डस्पार्स होते हैं, कैल्साइट होते हैं, माइका होते हैं और हॉर्नब्लेड होते हैं. अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. ठीक है, रॉक्स को बेसिकली 4 डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन. आइए जानते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑरिजिन, रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल क्लासेस और ग्रुप्स. ओके, ऑरिजिन के हिसाब से रॉक को 3 डिफरेंट हिस्सों में बांटा गया है. पहला है इग्नियस रॉक, सेकेंड वन इज सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. आइए जानते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में. Igneous rocks. The molten material present in the inside portion of the earth's surface is known as magma, and this magma occasionally tries to come out to the earth's surface through cracks or weak portions. The rocks which are formed by the cooling of magma are called igneous rocks. The portion of lava which comes outside the surface cools quickly and form a rock of non-crystalline nature called as trap or basalt. The rest which remains inside the earth undergoes cooling at a low rate and results in the formation of a rock of crystalline variety known as granite. The molten material अर्थ के निचले स्तरों में पाया जाता है. ठीक है, धरती के निचली भागों में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे मोल्टन मटेरियल्स होता है जिसको कि मैग्मा बोलते हैं. और ये मैग्मा कभी कभी बाहर आने की कोशिश करता है. जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है क्रैक्स की या वीक पोर्शंस जहाँ पे उसकी मदद से मैग्मा बाहर आ जाता है. तो जो मैग्मा बाहर आ जाता है वो ठंडा होने से रॉक फॉर्म होता है. इसी रॉक को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक. और कुछ पोर्शन जो होते हैं लावा के वो जो क्रैक्स होते हैं, द पोर्शन ऑफ लावा विच कम्स आउटसाइड द सरफेस कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स ए रॉक ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन नेचर. जो पोर्शन लावा मैग्मा के बाहर आ जाते हैं उससे नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के रॉक्स बनते हैं, जैसे कि ट्रैप हो गया, बेसाल्ट हो गया. और जो इनसाइड द अर्थ रह जाते हैं, जो कि क्रैक्स वगैरह में ही फंसे हुए रह जाते हैं, वो स्लो रेट पे कूलिंग होते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइन वैरायटी के रॉक्स, जिसको कि ग्रेनाइट बोलते हैं, जो कि ग्रेनाइट के रूप में मिलता है. द इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज प्लूटोनिक रॉक्स, नंबर 2 इज हैप्टाबाइसल रॉक्स एंड नंबर 3 इज वोल्कानिक रॉक. आइए जानते हैं प्लूटोनिक रॉक के बारे में. दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के कंसिडरेबल डेप्थ तक जो रॉक बनता है उसे प्लूटोनिक रॉक करते हैं. द कूलिंग इज स्लो एंड द रॉक्स पोजेज कोर्सली ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर.
This rock is mostly used for construction purpose. Granite is the leading example of this type of rock. वहाँ पे कूलिंग बहुत स्लो होता है जिससे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का रॉक फॉर्म होता है। इसको ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन पर्पस में लाया जाता है। ग्रेनाइट इसका एक अच्छा उदाहरण है। आइए जानते हैं हाइपोबैसल रॉक के बारे में। Hypobasal rocks are formed by the cooling of magma at a relatively shallow depth from the earth's surface. The cooling is quick and hence the rocks possess a finely grained crystalline structure, and dolerite is an example of this type of rock. मैग्मा जो कूलिंग होता है, मैग्मा का कूलिंग वो सैलो डेप्थ पे जब सैलो डेप्थ पे मैग्मा का कूलिंग होता है तो उसको हाइपोबैसल रॉक बोलते हैं। इसमें कूलिंग जल्दी होता है और इसमें फाइनली ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। डोलेराइट जो है इसका एक हाइपोबैसल रॉक का एक अच्छा उदाहरण है। वोल्कानिक रॉक्स, इन द केस ऑफ दिस रॉक्स सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द कूलिंग इज वेरी रैपिड एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू केसेस, हेंस द रॉक्स आर एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक। वोल्कानिक रॉक होते हैं जो कि मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तब ये जल्दी से कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा। यहाँ पे इसका कूलिंग बहुत जल्दी होता है एज कंपेयर टू प्लूटोनिक एंड हाइपोबैसल रॉक्स। इसलिए ये रॉक एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के बनते हैं। बेसाल्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। चलिए सेडिमेंटरी रॉक के बारे में पढ़ते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एक्शन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स ऑन द ओरिजिनल रॉक एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, रिवर, ग्लेशियर एंड सी एंड डिपोजिशन एट डिफरेंट लोकेलिटी। ठीक है, रॉक्स फॉर्म जो वेदरिंग एक्शन के कारण जो रॉक्स बनते हैं, हेयर एंड देयर जो रॉक्स के पार्टिकल्स हो जाते हैं रिवर से, विंड से, ग्लेशियर से या सी समुद्र से, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक करते हैं। मतलब जो रॉक सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को भी चार टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज रेसिडुअल डिपॉजिट्स। Some portion of the products of weathering remains at the site of origin. Such deposit is known as a residual deposit. वेदरिंग एक्शन से क्या होता है, कुछ पोर्शन बचा रह जाता है साइट पे, तो वो जो बचे हुए पोर्शन को हम लोग रेसिडुअल डिपॉजिट बोलेंगे। सेडिमेंटरी डिपॉजिट, द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग आर कैरिड अवे इन सस्पेंशन एंड व्हेन सच प्रोडक्ट्स आर डिपॉजिटेड दे गिव राइज टू सेडिमेंटरी रॉक्स। कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि वेदर में रहते हैं, ठीक है, जब ये डिपॉजिट होते हैं किसी जगह पे तो वो हो गया सेडिमेंट्री डिपॉजिट। केमिकल डिपॉजिट, सम मटेरियल दैट इज कैरिड अवे इन सॉल्यूशन may be deposited by some physiochemical process such as evaporation and precipitation. It gives rise to chemical deposits. ठीक है, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सॉल्यूबल सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं, तो जब ये इवापोरेट होते हैं तो वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल डिपॉजिट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। सम पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग गेट्स डिपॉजिटेड थ्रू द एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सच डिपॉजिट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, lignite, etc. Okay, now we will going to learn about metamorphic rocks. These rocks are formed by the change in character of the pre-existing rocks. जब सेडिमेंट्री रॉक एग्नियस रॉक्स के केमिकल कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। Igneous as well as sedimentary rocks changes in character when they are subject to great heat and pressure. The process of change is known as metamorphism, and the following table gives the names of the original and metamorphic rocks.
Mineral composition and texture of a rock represent a system which is in equilibrium with its physiochemical surroundings. Increase of temperature and pressure upsets this equilibrium and metamorphism results from an effort to re-establish of new equilibrium. In this process, original constituent minerals which are unstable under the changed conditions are converted into newer ones which are more stable under the changed condition. These minerals are arranged in a manner that is more suitable to the new environment. It should, however, be noted that changes produced by weathering and sedimentation are not included in metamorphism. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जिसका कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके उसके कैरेक्टर को बदल दिया जाता है। ठीक है, जो इस प्रोसेस को चेंज जो कैरेक्टर को जो चेंज करते हैं टेम्परेचर या प्रेशर की मदद से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट मिनरल जो होता है, जो अनस्टेबल होता है, वो चेंज कंडीशन में नया वो कन्वर्ट हो जाता है, उससे वो इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल हो जाता है। और जो हाँ एक चीज़, वेदरिंग एक्शन के कारण जो चेंजेज होते हैं या सेडिमेंट होते हैं, उसे मेटामॉर्फिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाता है। There are three agents of metamorphism, namely heat, pressure and chemically acting fluids. Heat may be supplied by the general rise of temperature with depth or by igneous magma. Pressure may be developed due to the load of rocks or movement of the earth. Chemically acting fluids play a passive role only, and they do not take active part in the process of metamorphism. Pressure may be uniform or directed. Uniform pressure may be applied to solids and liquids. Directed pressure or stress can exist only in solids, and it is converted into uniform pressure if applied to liquids. Following are the four types of metamorphism that occur with various combination of heat, uniform pressure and directed pressure. ठीक है, 3 एजेंट्स होते हैं मेटामॉर्फिज्म में, जो कि बेसिकली हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिंग फ्लूइड्स होते हैं। आइए जानते हैं सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में। नंबर 1 इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। हीट इज़ द प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में हीट जो होता है वो मेजर फैक्टर होता है। कैटेक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, at the surface of the earth temperature is low and metamorphism is brought about by directed pressure only. Such metamorphism is known as cataclysmic metamorphism, मतलब जो कि डायरेक्ट प्रेशर के वजह से होता है, डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे जो डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है उसे कैटेक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, देयर विल ऑलवेज बी rise in temperature with an increase in depth, hence heat in combination with stress brings about the changes in the rock. Such metamorphism is known as dynamo-thermal metamorphism. Fourth one is plutonic metamorphism. Stress is effectively only up to a certain depth. This is due to the fact that rocks become plastic in nature at certain depths. At great depths, a stage is reached when stress cannot exist as it converted into uniform pressure because of the plasticity of rocks. Metamorphic changes at great depths are therefore brought about by uniform pressure and heat. Such metamorphism is known as plutonic metamorphism. इस वीडियो में हम लोग आज इतना तक ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू होंगे। यदि यहाँ से आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।